friends, my name is Alok Kumar Dubey. I am from UP Sultanpur district and I have secured All India Rank 41 in Civil Service Examination 2018 and I am an IAS officer of 2019 batch Karnataka cadre. As I am getting many requests from my juniors, different students and different set of people uh, to how to motivate yourself during this COVID crisis. So I'm making this video to say few things so that you can motivate yourself and how you can keep yourself going. So first I would like to say that definitely there is no doubt that we are going through difficult times and we are in the lockdown phase. So अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपने आप को बचाना, अपने आप को हेल्दी रखना एंड देन उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करना सो दैट हम ये जो टाइम है इसको कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज़ कर पाएँ सो दैट आने वाले टाइम में ये जो हमारा लॉकडाउन का फेज है उससे हमें जो भी आउटपुट मिले वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो. सो आई वुड लाइक टू से few things like students who are preparing for the UPSC, their exams has been postponed, like prelims exam has been postponed and the date is yet to be notified by the UPSC, so they have got more time. And in this time I would like to say that you have to prepare it more thoroughly and you have to prepare more on different topics because of the fact that the date has been postponed and definitely the competition is going to increase and the cutoff is going to increase in this prelims because everyone has got the extra time and they will start preparing very deep and they will start and it is going to increase the cutoff of UPSC prelims as well as the mains. So आपको बहुत ही अच्छे से prepare करना है. And for the student who are in the schools who are going to give their board exams or any university exams, so मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आपके पास जो ये टाइम मिला है उसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो. And there are multiple channels which are free of cost, they are available online, which you can watch videos, you can understand uh, different topics, you can understand the underlying theory, underlying concept, and they are very well available on the internet and it is free of cost. So it is a very good opportunity for yourself to learn new thing and to understand the nitty gritties of the various things which you are not able to understand earlier because of the paucity of time. Apart from that, for the students who are still in the class 10th or 12th, I would like to say that आप इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आपका एम क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उस एरिया में थोड़ा और ड्वेल कर सकते हो. उससे क्या होगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा, उससे आपको ये सोचने का मौका मिलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और इसी तरह आप फिर जब प्लस टू के बाद उस डायरेक्शन में आप अगला स्टेप ले सकते हो. Many time it happens that in during the class 10th or 12th we are not that much capable to think what we want to do in our lives in the in future. So many times we get carried away with the flow. So ये जो लॉकडाउन फेज है इसमें हमें एम्पल टाइम मिल गया है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, चीज़ों को अंदर तक समझ सकें और अपना इंटरेस्ट एरिया क्या है, मेरी हॉबीज़ क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंक्लिनेशन क्या है, वो सब आपको क्या कहते हैं समझ में आ सकता है. यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, यू कैन डिस्कस विद योर सीनियर्स, यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम everyone, if you want to discuss anything, everyone is will give you time because they are not working, they are still at home. So this is one thing. And the second thing is that आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है. देर आर मल्टीपल थिंग्स. आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं. देर आर many motivational videos that are available online which you can see. इससे क्या होगा, अपने आपको मोटिवेशन मिलेगा. मैं भी जब मैं स्टडी करता था तो मैं अपने आप को कभी कभी ऐसा होता था, आई वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड, जब मैं डिसहार्टन होता था तो मैं भी देर
कुछ वीडियो सुनता था जो मुझे हाईली मोटिवेट कर देता था। तो उसमें से एक दो वीडियो जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे लगता है वो आपके अंदर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति पैदा कर सकता है। जैसे एक था, तुम कब तक मुझको रोकोगे, अमिताभ बच्चन जी के द्वारा रिसाइटेड है ये, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है। और दूसरा ये था, तू चल तू खोज में निकल, ये भी अमिताभ बच्चन जी के द्वारा रिसाइटेड है, तू खुद की खोज में निकल। तो ये ऐसे वीडियोस थे जो आपको अंदर से मोटिवेट कर देते थे कि लाइक ओके, इफ आई वांट टू डू समथिंग आई विल डू समथिंग एंड नो वन कैन स्टॉप मी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो ये लॉकडाउन का फेज है, इसमें आप इस टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं कर रहे हों। तो जो यूज कर रहे होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सबके अपने अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। बट डोंट लेट दिस टाइम गो, बिकॉज एक बार अगर ये टाइम चला गया तो आपको बाद में फिर दुख होगा, पछताना पड़ेगा कि मेरे पास इतना खाली टाइम था, मैंने यूज नहीं किया। आप एक प्लान बनाइए और उसको एग्जीक्यूट करिए ऑन द डेली बेसिस। वन थिंग आई वुड लाइक टू से दैट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम मैं दो मंत्रा फॉलो करता था, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहला था, इफ़ यू फेल टू फॉलो योर प्लान देन प्लान टू फॉलो योर फेलियर। अगर आपने जो प्लान बनाया है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका फेलियर डेस्टिन्ड है। तो ये चीज थी, अगर तुम आपने अपना प्लान फॉलो नहीं किया तो अपनी फेलियर को फॉलो करिए, आप फेल होना निश्चित है। दूसरा मंत्र मेरा था, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज मच लेस देन द पेन ऑफ फेलियर। अगर आप डिसिप्लिन में होते हो तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी, आपको परेशानी होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं डेली ऐसा कर रहा हूँ। बट उसका पेन बहुत कम होता है जब आपको फेलियर मिलती है। फेलियर का पेन बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर एक के लिए अपना एम अलग है, हर एक के लिए अपना डेस्टिनी अलग है, हर एक के लिए अपना जो ऑब्जेक्टिव है अलग है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं। अगर आप 10th 12th का एग्जाम दे रहे हो तो आपको अच्छे से पढ़ना कैसे है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से ये जो टाइम है इसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारा आप देख सकते हो। और देखना चाहिए, आपको अपने अंदर धैर्य, साहस और आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, और इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूज करना पड़ेगा। यूज करना भी चाहिए, क्योंकि योर काउंटर पार्ट विल बी यूजिंग दैट टाइम इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे। So that is very important. And push yourself, and no one is going to push, no one is going to do anything for you apart from you yourself only. So that is very important. और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा, ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, and follow the lockdown guidelines and other guidelines of safety being advised by the government of India and your state governments, so that you can save your lives and the life of other people also, and use this time constructively in whatever manner you want. But आप टाइम को फ्री मत छोड़िए, आप इसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, इसमें कुछ अच्छा करिए। आप अपनी हॉबीज डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। स्टे फिट।